So the topic is how to solve numericals related to spherical mirror. और न्यूमेरिकल्स करने के लिए आपको फॉर्मूला का नॉलेज होना पड़ेगा, आपको न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन का नॉलेज होना पड़ेगा. एंड फॉर्मूला नंबर 1 दैट विल बी रिक्वायर्ड, फॉर्मूला नंबर 1 का अगर बात करें हम लोग, जो आप लोगों को रिक्वायर्ड होगा, यू कैन नोट डाउन ऑल्सो इफ यू वांट. नंबर 1 by u plus 1 by v equals to 1 by f. Here u is the object distance, v is the image distance, and f is the focal length. Formula number 2 that will be required, f equals to r by 2, or we can write r equals to twice f. Formula number 3 is related to magnification, m equals to minus v by u. I am discussing everything in relation to the spherical mirror. Mirror का discussion हो रहा, वो भी spherical mirror. And number 4, m equals to h dash by h. You can also write h1 by h2, h2 by h1, लेकिन आपका सिलेबस में h dash by h symbol are used, and I hope you know the meaning of all these symbol. सबको ये symbol का meaning तो पता ही होगा, I think so. किसी को कोई भी डाउट है, they can ask. U object distance, V image distance, F focal length, R radius of curvature, M magnification, or H is the height of object, H dash is the height of image. Okay. Then about new Cartesian sign convention. About new Cartesian sign convention. डिटेल आपको वीडियो लिंक मैंने भेजा है, वहां पूरा समझाया हुआ है. अभी मैं न्यूमेरिकल करने के लिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए, that I am going to discuss. Okay. So definition ये सब में अगर आपको प्रॉब्लम है तो उसका भी लिंक मैं भेज दूंगा. You will be able to understand that. New Cartesian sign convention I am going to discuss. And first about concave mirror. When you are going to solve numericals related to concave mirror, object distance आपको नेगेटिव लेना है. क्वेश्चन में जो भी गिवन वैल्यूज होगा उसके लिए साइन कन्वेंशन अप्लाई करना होगा, एंड दोज वैल्यूज व्हिच आर नॉट गिवन एंड यू आर आस्क्ड टू फाइंड, वो अपने आप प्रॉपर साइन कन्वेंशन में, प्रॉपर साइन में आपको आंसर में मिलेगा व्हेन यू यूज द फॉर्मूला. So whenever you are solving numericals related to concave mirror, u is negative, v negative for real inverted, v positive for virtual erect image, then f is negative, r is negative. F is negative and r is negative. So when you are solving numericals related to concave mirror, u negative लेना, v negative, real inverted के लिए v positive, virtual erect के लिए f is negative, r is negative. And when you are solving numericals related to convex mirror, when you are solving numericals related to convex mirror, आपको u फिर भी negative लेना है. V convex mirror में always virtual image that are formed behind the mirror, V always positive लेना है. Then F always positive लेना है, R always positive लेना है. Convex mirror forms only virtual and erect images. Virtual and erect images. Real image कभी form नहीं करते. Okay? It forms only virtual and erect images. Then sign convention for magnification.
M is always negative for real inverted images. M is always positive for virtual erect images. ये साइन कन्वेंशन मैग्निफिकेशन के लिए। फिर अगर आपको बोला जाए हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के लिए, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, हाइट ऑफ द इमेज इज नेगेटिव फॉर रियल इन्वर्टेड। आर आई जो मैं लिख रहा हूं आपको समझना वहां रियल इन्वर्टेड, और एच डैश इज पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इरेक्ट। ओके, एच डैश इज व्हाट, पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इरेक्ट। और एक और इंपॉर्टेंट बात न्यूमेरिकल करने के लिए आपको जानना चाहिए, रियल इन्वर्टेड इमेजेस आर फॉर्म्ड in front of mirrors. Real inverted images are formed in front of mirrors, and virtual erect images are formed behind the mirrors. आर फॉर्म बिहाइंड द मिरर्स, मिरर का केस में। सो आज हम लोग बात मिरर के बारे में कर रहे हैं। ओके, तो शिवेश पूछ रहा हाइट नेगेटिव कैसे हो सकता है। रियल इमेज जो है, रियल इमेज इन्वर्टेड होता है, अपसाइड डाउन। और ये जो न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन है वो ग्राफ से रिलेटेड है। ये जो एक्सिस होता है y एंड x एक्सिस, तो नीचे की तरफ जो भी आप मेजरमेंट करोगे ओरिजिन से, सबको क्या लेना, आपको नेगेटिव लेना है। और ऊपर की तरफ जो भी मेजरमेंट करोगे उसको क्या लेना है, पॉजिटिव। नीचे की तरफ जो मेजरमेंट लोगे वो नेगेटिव होते। ऑन दैट बेसिस न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन को आप कंपेयर कर सकते हो ग्राफ से। ग्राफ में जो साइन यूज किया जाता है उसके साथ कंपेयर कर सकते हो। ओके, सो ये इतना इंफॉर्मेशन आपको चाहिए न्यूमेरिकल्स करने के लिए। और आपको न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन समझने में प्रॉब्लम है, देन वो वीडियो आप 10 बार देखो, जो लिंक में आपको मिला है उसको 10 टाइम्स 12 टाइम्स देखो, वहां बहुत कुछ समझाया हुआ है, एंड बाय दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। और अभी मैंने फॉर्मूला समझा दिया है, दैट विल हेल्प यू इन सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स। और आज का क्लास का टारगेट है न्यूमेरिकल। जो मैंने सिलेक्ट किए 10 क्वेश्चन आप लोगों के लिए, अगर वो 10 क्वेश्चन आप लोग दिमाग लगा के सॉल्व कर लोगे तो आप किसी भी न्यूमेरिकल को करने लायक रहोगे। मतलब टफ क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो जाएगा अगर आपका बेसिक स्ट्रांग होगा। सो आज का टारगेट है वो 10 न्यूमेरिकल अगर हम लोग कंप्लीट कर पाते हैं, एंड इफ यू आर एबल टू सॉल्व। मैं सिर्फ आपको समझाऊंगा, हिंट दूंगा, थोड़ा साइन कन्वेंशन में हेल्प करूंगा। फाइनल आंसर आप लोगों को खुद को कैलकुलेट करके निकालना है, आंसर लास्ट में बोला जाएगा। ओके, तो हर क्वेश्चन के लिए कुछ टाइम लिमिट होगा, उतना ही टाइम फ्रेम में आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालना है। अगर आपसे नहीं हो रहा मतलब आप कैलकुलेशन में थोड़ा प्रॉब्लम है आपके, वो सब फैक्टर देखना आपको। ओके, तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात, रियल इमेजेस आर फॉर्म्ड, रियल इमेजेस आर फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, वर्चुअल इमेजेस आर फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। याद रखना, वर्चुअल इमेजेस आर फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। आगे बढ़ने से पहले एक और बात मैं बता देना चाहता हूं, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग। अगर मैं मैग्निफिकेशन -2 लिखता हूं, इसका मतलब आपको जानना चाहिए। -2 में माइनस साइन इंडिकेट्स व्हाट, रियल इन्वर्टेड इमेज, और 2 इंडिकेट्स 2 टाइम्स मैग्निफाइड, 2 टाइम्स मैग्निफाइड, 2 इंडिकेट्स व्हाट, 2 टाइम्स मैग्निफाइड। और अगर मैं लिखता हूं, इफ आई राइट m इक्वल्स टू 2 ओनली, +2, या 2 लिखता हूं, वो +2 ही समझा जाएगा, देन इमेज होगा वर्चुअल इरेक्ट, और वर्चुअल इरेक्ट साथ में ये 2 टाइम्स मैग्निफाइड, 2 टाइम्स मैग्निफाइड। ये मीनिंग आपको जानना होगा, बहुत न्यूमेरिकल में ये कॉन्सेप्ट आपको यूज करना होगा। और साथ ही अगर मैं लिखता हूं m इक्वल्स टू
1/3, तो आप चैट बॉक्स में बताओ क्या मीनिंग होना चाहिए इसका। m इक्वल्स टू 1/3, m इक्वल्स टू 1/3। 1/3 का मतलब हो गया 3 टाइम्स डिमिनिस्ड, स्मॉलर, 1/3। और इसमें रियल या वर्चुअल, कैसा इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट, 3 टाइम्स स्मॉलर एंड वर्चुअल इमेज। ओके, सो m इक्वल्स टू 2 अगर मैं लिखता हूं, आपका एक जनरल नॉलेज में देखता हूं, इफ आई राइट m इक्वल्स टू 2 और मेरा क्वेश्चन है m इक्वल्स टू 2, इज इट पॉसिबल इन कॉन्वेक्स मिरर, इज इट पॉसिबल इन कॉन्वेक्स मिरर? तो दोनों टाइप का आंसर मुझे मिल रहा है। कॉन्वेक्स मिरर में m का वैल्यू 2 पॉसिबल है क्या? तो मेरा आंसर होगा नहीं है। क्यों? 2 का मतलब हो गया मैग्नीफाइड, और कॉन्वेक्स मिरर तो कभी भी मैग्नीफाइड इमेज बनाता ही नहीं है। कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल में, सॉरी, कॉन्वेक्स मिरर जो है वो ऑलवेज कैसा इमेज बनाता है, डिमिनिश्ड इमेज, और m का 2 का मतलब मैग्नीफाइड। तो m इक्वल्स टू 2, वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज पॉसिबल है ओनली इन कॉनकेव मिरर, नॉट इन कॉन्वेक्स। तो आपको न्यूमेरिकल करने के लिए रे डायग्राम्स का भी नॉलेज होना चाहिए, आपको न्यूमेरिकल करने के लिए न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन का भी नॉलेज होना चाहिए। और आज मैंने 3 वीडियो का लिंक भेजा है, आपको आज का क्लास करने के बाद भी अगर प्रॉब्लम होता है, आपको वो तीनों लिंक एकदम अच्छा से देखना चाहिए, और फिर आज का क्लास का लिंक भी आपको मिल जाएगा। इन चारों क्लास को अगर आप बार बार देखोगे, देन न्यूमेरिकल में मिरर में प्रॉब्लम नहीं होगा, और लेंस का न्यूमेरिकल तभी आप इजीली कर पाओगे जब आपको मिरर का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ओके, सो कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल इमेज हमेशा बनाता है। तो यहाँ क्वेश्चन है, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, तो पॉजिटिव ही होगा हमेशा। गुड, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। कॉन्वेक्स मिरर में m का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता, बिकॉज इट विल नेवर फॉर्म रियल इमेज। ओके, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट सॉल्विंग, नॉट सॉल्विंग एग्जैक्टली, डिस्कसिंग क्वेश्चंस। सॉल्यूशन आपको निकालना है, मैं डिस्कस करूंगा और सॉल्यूशन आपको निकालना है। सो I'm going to start that part. This is first question on the screen. आप लोग मेरा वेट मत करना कि मैं समझाऊं फिर आप लोग करोगे। मेरे पास एक शीट में सबका आंसर एक एक करके लिखा हुआ है, मुझे कुछ नहीं करना है, मैं फाइनल आंसर ही आपको बताऊंगा, आपको उस आंसर तक पहुंचना है। मेरा हिंट देने से पहले अगर आपका हो जाता तो बहुत अच्छा बात है, और मैं 1 मिनट वेट करके हिंट देना स्टार्ट भी करूंगा, और क्वेश्चन रीडिंग करके मैं समझा रहा हूं आपको। यू शुड स्टार्ट सॉल्विंग। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई, तो क्वेश्चन में गिवन है एक ऑब्जेक्ट का हाइट 4 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का सिंबल h होता है। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट आपको बता दिया यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट का हाइट अकॉर्डिंग टू न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन ऑलवेज पॉजिटिव लेना है, तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट पॉजिटिव में लेंगे हम लोग। एंड इट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर। द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर। कभी भी पूरा क्वेश्चन पढ़े बिना, समझे बिना उसका सॉल्यूशन स्टार्ट नहीं करना है। ओके, मेरे लिए ये क्वेश्चन पहले से पढ़ा हुआ है तो मुझे दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोग पूरा क्वेश्चन को पढ़ना पहले। ऑलवेज फोकस करना न्यूमेरिकल कौन सा मिरर के ऊपर है, उसको तो मैं कहता हूँ अंडरलाइन करके रख लेना, क्योंकि ये बहुत बड़ा गलती हो सकता है बाद में। ओके, सो ऑब्जेक्ट का हाइट कितना, 4 सेंटीमीटर। इट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर का फ्रंट में ये 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस में है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम लोग लेंगे -6। अब आपको साइन कन्वेंशन यूज करना आना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, ओके। देन कॉनकेव मिरर, इट्स फोकल लेंथ इज टेकन नेगेटिव, -12।
अगर आपको साइन कन्वेंशन नहीं पता होगा तो न्यूमेरिकल इम्पॉसिबल आपके लिए। अब आपको फाइंड आउट करना है पोजीशन, नेचर और साइज ऑफ द इमेज। पोजीशन ऑफ द इमेज का मतलब आपको वी फाइंड आउट करना है, फिर वी से आपको नेचर ऑफ द इमेज भी पता चलेगा। मैं जो बोल रहा हूं ठीक से सुनना आप, और बाद में आपको साइज ऑफ द इमेज निकालना है। तो पहला टारगेट हम लोग को पोजीशन और नेचर बताने के लिए वी फाइंड आउट करना होता है, पोजीशन ऑफ इमेज एंड नेचर ऑफ इमेज। अब यू और एफ से आपको वी फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला, स्फेरिकल मिरर फॉर्मूला 1/u प्लस 1/v इक्वल्स टू 1/f। ये फॉर्मूला यूज करके आप पहले v फाइंड आउट कर लो, फिर मेरा बात सुनते रहो। जिसको न्यूमेरिकल में दिक्कत होता है वो लोग सुनते रहना ठीक से। v का आंसर आपका आ जाएगा। अब मैं आपको हिंट देता हूं, v का आंसर अगर आपका नेगेटिव आता है तो इमेज नेचर ऑफ द इमेज रियल इन्वर्टेड होगा। v का आंसर अगर नेगेटिव आएगा तो रियल इन्वर्टेड, और v का आंसर अगर पॉजिटिव आता है तो वर्चुअल इरेक्ट। तो वो आपका v का आंसर पे डिपेंड करेगा नेचर क्या है, ठीक है। और आप लोग पहले से जानते हो कि रियल इन्वर्टेड इमेज दे आर फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर, दे आर फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर, ठीक है। मैं पूरा आपको आंसर लिखने का तरीका भी समझाऊंगा इधर। और वर्चुअल इरेक्ट इमेज कहां फॉर्म होता है? बिहाइंड द मिरर, इट इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल इरेक्ट। तो आपका v जब आप कैलकुलेट कर रहे हो तो कितना आ रहा है देखता हूं मैं, चैट बॉक्स में बहुत आंसर मिला है। ओके, v का आंसर अलग अलग आ रहा है, लेकिन v का आंसर आपका आना चाहिए। आज का क्लास में कौन आंसर दे रहा है नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट मैं चेक कर रहा हूं मेजोरिटी का आंसर क्या हो रहा है। v का आंसर आपका आना चाहिए 12 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 12 प्लस में 12 आना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं आ रहा तो कहीं कैलकुलेशन प्रॉब्लम आपका। v का आंसर प्लस में 12, ठीक है। तो v का आंसर प्लस में 12 आएगा। तो यहाँ पे फोकल लेंथ 12 है, तो अगर रे डायग्राम से आप कंपेयर करो तो ऑब्जेक्ट कहाँ है? बिटवीन फोकस एंड पोल, तो इमेज बिहाइंड द मिरर होता है, वर्चुअल। तो v का आंसर पॉजिटिव आने का मतलब आपको पता चल गया वर्चुअल इमेज है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आपको पोजीशन ऑफ इमेज लिखना आना पड़ेगा स्टेटमेंट में। एग्जाम में पोजीशन ऑफ इमेज अच्छा से आपको v फाइंड आउट करने के बाद एक स्टेटमेंट भी देना होगा। उस स्टेटमेंट में बहुत इंफॉर्मेशन होगा, जैसे v12 आ गया, द इमेज इज फॉर्म्ड। v12 आ गया तो हम लोग बोल सकते हैं द इमेज इज फॉर्म्ड, द इमेज इज फॉर्म्ड 12 सेंटीमीटर अवे बिहाइंड द मिरर। हमको कैसे पता चला बिहाइंड? क्योंकि v का आंसर पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए हमको पता चल गया बिहाइंड द मिरर। द इमेज इज फॉर्म 12 सेंटीमीटर अवे बिहाइंड द मिरर। ऐसे करके आपको पोजीशन बताना चाहिए, पूरा स्टेटमेंट। और अगर आप और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दे सकते हो, बिहाइंड द मिरर में तो उतना एक्यूरेट और पॉसिबल नहीं है, लेकिन बिहाइंड द मिरर में और एक्यूरेसी पॉसिबल नहीं है, लेकिन इन फ्रंट ऑफ द मिरर में होता तो आप बोल सकते थे बिटवीन सी एंड एफ, बियॉन्ड सी, बिटवीन, जो भी अलग अलग पॉइंट के बीच में। देन पोजीशन ऑफ इमेज हो गया। अब नेचर ऑफ इमेज भी आपको पूछा गया। नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज आप कैसे बताओगे? v का आंसर से पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव। v का आंसर अगर आपका पॉजिटिव आ रहा है, यू आर गेटिंग पॉजिटिव आंसर फॉर v, पॉजिटिव आने से वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो नेचर ऑफ इमेज आपको लिखना होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। हो गया। अब थर्ड पार्ट पूछा साइज ऑफ द इमेज। साइज ऑफ द इमेज मतलब आपको पोजीशन पूछा था, और उसके बाद साइज ऑफ द इमेज मतलब h डैश। साइज ऑफ द इमेज निकालने के लिए पहले आप, मेरा जो तरीका है वो मैं बताता हूँ, बहुत लोग डायरेक्ट भी कर लेते हैं। मैं पहले मैग्निफिकेशन निकालने बोलता हूं सबको। फर्स्ट मैग्निफिकेशन m इक्वल्स टू माइनस v/u, इससे आप मैग्निफिकेशन फाइंड आउट कर लो। आपका मैग्निफिकेशन कैलकुलेट हो जाएगा, और मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता, देयर इज नो यूनिट फॉर मैग्निफिकेशन, याद रखना। और उसके बाद आप
m equals to h dash by h फॉर्मूला यूज करके यू कैन फाइंड आउट h dash, हाइट ऑफ द इमेज। और हाइट ऑफ द इमेज आपका आंसर आना चाहिए, बहुतों ने आंसर दिया है हाइट ऑफ द इमेज। चलो वर्चुअल इमेज है तो हाइट पॉजिटिव में आना चाहिए नेगेटिव में आना चाहिए, पहले ये कंफर्म बता दो हमको। हाइट पॉजिटिव में आना चाहिए नेगेटिव, तो आंसर पॉजिटिव में आना चाहिए। वर्चुअल है तो पॉजिटिव में आना चाहिए हाइट ऑफ द इमेज, और आंसर यहाँ पे है 8 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द इमेज का आंसर जो है वो पॉजिटिव में है एंड इट इज 8 सेंटीमीटर। वर्चुअल इमेज में हाइट पॉजिटिव आएगा। तो ये पहला क्वेश्चन आपका फाउंडेशन है। ये अगर प्रॉपर तरीका से आपका सॉल्व हो रहा है तो आपका टेंशन ज्यादा बड़ा नहीं है। ओके, इसमें आप 8 टाइम्स मैग्नीफाइड नहीं लिख सकते। कितना टाइम्स मैग्नीफाइड है वो तो मैग्निफिकेशन से पता चलेगा। मैग्निफिकेशन का आंसर क्या आ रहा है आपका? मैग्निफिकेशन का आंसर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो मैग्निफिकेशन का आंसर से आप बता सकते हो कि कितना टाइम्स मैग्नीफाइड। तो m का वैल्यू 2, दैट मीन्स 2 टाइम्स मैग्नीफाइड। 2 टाइम्स कैसे? देखो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर था ऑब्जेक्ट का और इमेज का हाइट कितना आ रहा है? 8, डबल हो गया, 2 टाइम्स मैग्नीफाइड। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सबको समझ में आ गया? प्रियल सराफ, हैव यू अंडरस्टूड? तुम्हारा बहुत दिन से डिमांड था ये टॉपिक का। Okay, so I am moving to another question and I hope that all of you have understood the technique. Now second question, ये क्वेश्चन कौन सा मिरर का था? कॉनकेव मिरर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन में हम लोगों ने ज्यादा टाइम लिया है फाउंडेशन के लिए, अब हम लोग थोड़ा फास्ट जाने का कोशिश करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। सेम ही क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन है, मिरर अलग है। सिमिलर क्वेश्चन आप खुद ट्राई करो, मैं आपके लिए वेट करता हूं 2-3 मिनट, आप लोग कोशिश करो। जस्ट ट्राई। शुड आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? आई हैव गिवन ऑल द हिंट हियर। आप हिंट को देखो, समझ जाओ एंड देन यू कैन सॉल्व। ऑब्जेक्ट, यहाँ पे मेन प्रॉब्लम क्या था इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया होता एन ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर इन लेंथ। तो बहुत स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ले लिया होगा और यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था 10 सेंटीमीटर। देन u और f से यू कैन इजीली फाइंड आउट v, देन m, देन h डैश। h डैश फाइंड आउट करने के लिए मैंने स्टेप बताया था आपको, पहले m बाद में h डैश, लेकिन कुछ स्टूडेंट चाहे तो डायरेक्टली ऐसे भी -v by u इक्वल्स टू h डैश by h भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, मनीष चौधरी पूछ रहे हैं, हाँ यही गलती किया है। ओके, एच को यू ले लिया। तो माइंड गेम हमको पता है, ये क्वेश्चन सिलेक्ट करने का रीजन वही था मनीष चौधरी, रीजन वही था। ओके, फिर कीर्ति पूछ रही है सर कॉन्वेक्स में हर बार P और F के बीच में इमेज फॉर्म होता है क्या? हाँ, एक कंडीशन को छोड़ के, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में होगा तो इमेज एग्जैक्टली फोकस में होगा। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में होगा तो इमेज एग्जैक्टली फोकस पे होगा। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वन। सो आई एम मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। आई एम मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, थर्ड वन। जस्ट लुक एट द क्वेश्चन। ओके, थर्ड वन। उससे पहले प्रियल सर, आपने कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ पॉजिटिव क्यों होता है? इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन वाला वीडियो 10 बार देखो। फिर भी रीजन मैं अभी बता देता हूँ। कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ पॉजिटिव होने का रीजन है उसका फोकस जो है वो बिहाइंड द मिरर होता है। इसका एक रीजन ये है, बिहाइंड द मिरर, फोकस कॉन्वेक्स मिरर में बिहाइंड द मिरर। ओके, नाउ दिस इज थर्ड क्वेश्चन। आप अपना सॉल्यूशन वाला पार्ट स्टार्ट कर सकते हो। नाव्या ने तो आंसर भी दे दिया है, मैं क्वेश्चन भी नहीं देखा हूं अभी तक, इसलिए आपका कंफर्मेशन नहीं कर सकता।
क्वेश्चन देखना है मुझे। अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 90 सेंटीमीटर फ्रॉम द वॉल। एक कॉनकेव मिरर जिसका फोकल लेंथ, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव में लेते हैं हम लोग 30 सेंटीमीटर, ओके, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 90 सेंटीमीटर फ्रॉम द वॉल। तो क्वेश्चन समझना है, सिर्फ आंसर फाइंड आउट करने से नहीं है, क्वेश्चन भी ठीक से समझना। कभी कभी क्या होता है, आंसर आ जाता है और पता ही नहीं चलता, क्वेश्चन में पूछा कुछ और है और फाइंड आउट कुछ और करके आंसर जैसे तैसे आ गया। ये कॉनकेव मिरर है, ओके। एंड इसका फोकल लेंथ हम लोग को बता दिया, पोल और फोकस के बीच में जो डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर। एंड ये भी इंफॉर्मेशन दिया गया कि द मिरर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 90 सेंटीमीटर फ्रॉम द वॉल। तो ये मिरर को एक वॉल से 90 सेंटीमीटर डिस्टेंस में रखा गया। ये समझो ये वॉल है, ओके, ये 90 सेंटीमीटर डिस्टेंस में रखा गया। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया, मतलब ये गैप 90 सेंटीमीटर, दिस गैप इज व्हाट 90 सेंटीमीटर, ये पर्टिकुलर गैप 90 सेंटीमीटर है, दिस वन, ओके, दिस गैप इज 90 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट, ये फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। आपको क्या पूछा है, हाउ फार फ्रॉम द वॉल शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड। क्वेश्चन ठीक से, हाँ, आंसर आ गया होगा। हाउ फार फ्रॉम द वॉल शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड so as to get its real image on the wall. How far from the wall should an object be placed? Suppose मैं ऑब्जेक्ट को यहां रखा और उसका इमेज वॉल पे फॉर्म होना चाहिए। इमेज कहां फॉर्म होना चाहिए, वॉल पे। तो ज्यादातर स्टूडेंट ने क्या किया होगा, दे फाउंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और आंसर मुझे भेज दिया होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या था, हाउ फार फ्रॉम द वॉल शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड। मतलब आपको पूछा गया इस बारे में, ये गैप के बारे में, और आपने मुझे ये फाइंड आउट करके भेज दिया। ऐसा हुआ है मेजॉरिटी का। और इस क्वेश्चन में क्या कोइंसिडेंस है कि दोनों आंसर सेम है, तो आपका आंसर तो सेम ही आएगा, लेकिन आपने क्या आंसर भेजा वो आपको अभी समझ में आएगा। A concave mirror of focal length 30 centimeter is placed at a distance of 90 centimeter from the wall. How far from the wall should an object be placed so as to get real image on the wall? मतलब आपको फोकल लेंथ बता दिया गया, आपको क्या बता दिया गया, आपको फोकल लेंथ बता दिया गया, आपको इमेज डिस्टेंस भी बता दिया गया। इमेज डिस्टेंस कितना आ रहा है, इमेज डिस्टेंस कितना आ रहा है, if I ask you? इमेज डिस्टेंस, जस्ट वेट। सो ये क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया और आपने क्या समझा, अगर वो मैंने ठीक समझा, आई थिंक एक गलती हुआ है मेजोरिटी से। हाउ फार फ्रॉम द वॉल शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड। वॉल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पूछा तो आपको u और v देखो, वॉल पे इमेज बनेगा, मतलब इमेज का मिरर से डिस्टेंस कितना हुआ 90, रियल इमेज, सो -90। वॉल पे इमेज बनने से रियल इमेज, ये कैसे पता चला, रियल इमेजेस कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, वर्चुअल इमेजेस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। और f और v से आपको u फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मैं अगर आपको पूछूं u कितना आ रहा आपका, चलो u का वैल्यू बताओ। u का वैल्यू बताने से आपको नेगेटिव में बताना है, गुड, u का वैल्यू नेगेटिव में बताना है, ठीक है। अब देखो ट्विस्ट क्या है इस क्वेश्चन में, आपको u का वैल्यू नेगेटिव में बताना है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज -45 आएगा, लेकिन क्वेश्चन में पूछा कुछ और है। तो ये गैप के बारे में आपको पूछा गया है, ठीक है। ये गैप के बारे में जब आपको पूछा गया तो आपको ये स्टेटमेंट में बताना होगा, द डिस्टेंस बिटवीन, नाउ द डिस्टेंस बिटवीन the object and the wall, object and the wall, ये डिस्टेंस, तो डायरेक्ट आप 90 सेंटीमीटर -45 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको जरूरी नहीं साइन कन्वेंशन यूज करना, क्योंकि आपको तो ये गैप के बारे में बताना है,
Okay, so it will be what, 45 centimeter. I hope you have understood this particular solution. अपने आप हो गया होगा आप लोगों से. ओके, शिवेश आपको गैप में साइन कन्वेंशन क्यों यूज करना है? गैप का आपको बोलेगा हम ये और ये कोई गैप है, वहां पे न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन अप्लाई नहीं करना आपको. ओके, आपको न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन यूज नहीं करना है. आपको पहले सबका यू का आंसर आ गया क्या? हैव यू गॉट द आंसर फॉर यू, ऑल ऑफ यू? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको पता चल गया, -45 आ रहा है. हैव यू गॉट दैट? तो उसके बाद क्वेश्चन में डायग्राम देखो, डायग्राम से कंपेयर करो और वो गैप निकालना है. तो गैप निकालना तो डायरेक्ट, ये तो बेसिक बात है. आपको बेसिक बात एक पूछा गया कि ये गैप, ये 90 और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना आ रहा है आपका, 45 आ रहा है. नेगेटिव तो हम लोग साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग लिखते हैं. ये नेगेटिव आ रहा है आपका. तो 90 से 45 सेंटीमीटर को हटा दो, बचा कितना, 45 सेंटीमीटर. दिस वे प्रियल सराफ, हैव यू अंडरस्टूड? वी कैलकुलेट करना तो वो आपको करना है, जस्ट मैंने हिंट दे दिया, उसमें आपका हेल्प यहां नहीं होगा, आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा. एफ और वी से आपको यू कैलकुलेशन करना होगा, सॉरी यू कैलकुलेशन करना होगा. वी तो -90 है, v -90 आपको u कैलकुलेट करना होगा. गैप मनीष चौधरी नेगेटिव में क्यों होगा? दो चीज के बीच में गैप मतलब डिस्टेंस का बात हो रहा है यहाँ पे. -45 कैसे होगा? आपको बता दिया मैंने, तुम्हारे और कोई एक चीज के बीच में डिस्टेंस 90 है, बीच में कोई और चीज है, उनके बीच में निकालो कितना है गैप. सो ये क्वेश्चन में यही प्रॉब्लम था कि बहुत स्टूडेंट u इक्वल्स टू -45 सेंटीमीटर लिखने के बाद सोचने लग गए कि उनका आंसर करेक्ट है, लेकिन ये रॉन्ग था कॉन्सेप्ट. वहां पे आपको क्वेश्चन में पूछा गया कुछ और आपने फाइंड कुछ और किया है. आई होप नाउ इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. यहाँ पे क्वेश्चन है मनीष चौधरी, गैप बिटवीन बोथ नेगेटिव में नहीं होगा. नहीं होगा बाबू, नहीं होगा. यू तो 45 आया, बट साइन कन्वेंशन से हो तो -45 आएगा ना. यस वंदना, -45 आना पड़ेगा. और फाइनल आंसर -45 है. मनीष चौधरी, द रामायण आई हैव एक्सप्लेन टू यू कि आपको साइन कन्वेंशन गैप के लिए यूज नहीं करना है. साइन कन्वेंशन जब आप ये फॉर्मूला यूज करो तब करना है. तनिष, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड, सो आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो हर एक क्वेश्चन में कुछ सीखने को मिल रहा होगा और इन क्वेश्चन को इसी वजह से सिलेक्ट किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सीखने के लिए कुछ नहीं है, इसमें आपका स्पीड मैटर करता है. यहाँ पे आपका स्पीड मैटर करता है. ठीक है, तो मैं वेट करता हूँ 1 मिनट, कौन पहले आंसर देता है. नंबर 4, नंबर 4 में आपको आंसर देना है, कौन पहले दे रहा है. सबसे पहले कौन आंसर देगा? नंबर 4. स्पीड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. नंबर 4 हर्ष अग्रवाल. गुड, हर्ष अग्रवाल बहुत पास में है आपका, ऑलमोस्ट करेक्ट ही है. मनीष चौधरी का एक पार्ट करेक्ट हो गया, दोनों आंसर हर्ष अग्रवाल ने दिया है. हर्ष अग्रवाल, ओके. तो अब बाकी सबके लिए बता देता. स्पीड इंपॉर्टेंट था तो वो टाइम चला गया, अब स्पीड वाला अब मैं बता ही देता हूं. ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर. Placed at a distance of 20 centimeter -20 centimeter in front of a convex mirror. Mirror का नाम पे ध्यान देना. Radius of curvature is 30. Convex mirror का radius of curvature पॉजिटिव होता है, इससे हम लोग को फोकल लेंथ पता चल जाएगा. F equals to R/2.
फोकल लेंथ हम लोग को पता चल गया 15 सेंटीमीटर। आपको पूछा गया पोजीशन ऑफ द इमेज V, ओके, नेचर ऑफ द इमेज, तो V से दोनों इंफॉर्मेशन आ जाएगा, V से दोनों इंफॉर्मेशन आ जाएगा। देन साइज ऑफ द इमेज के लिए टेक्निक आपको पता है, पहले आप M फाइंड आउट करो एंड देन M इक्वल्स टू H डैश बाय H से कर सकते हो आप, H डैश फाइंड आउट कर सकते हो, H डैश इक्वल्स टू M इंटू H, H dash is equals to what? M into H, like this। और आंसर मैं बता देता हूं आपको, V का आंसर जो आपको आना चाहिए वो आना चाहिए 8.57 सेंटीमीटर अप्रॉक्स, थोड़ा आसपास होने से भी चलेगा। और हाइट ऑफ द इमेज आपका आना चाहिए, वर्चुअल इमेज होगा, प्लस में आएगा हाइट ऑफ द इमेज 2.14 सेंटीमीटर, 2.14 सेंटीमीटर। सो ये आंसर से अब दिमाग लगाओ गलती कहां पे हुआ है, ओके गलती कहां पे हुआ उसको तो आपको ढूंढना पड़ेगा ना। फॉर्मूला, टेक्निक, साइन कन्वेंशन, फॉर्मूला कैसे यूज करना, सब बात मैंने समझा दी है। और अब स्पीड इंपॉर्टेंट है, बहुत स्टूडेंट न्यूमेरिकल कर चुके, आंसर भी दे दिया करेक्ट। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप में प्रॉब्लम है, आपका प्रैक्टिस ठीक नहीं है या आपने उतना मेहनत नहीं किया है, दैट इज द प्रॉब्लम। अगर कुछ स्टूडेंट आंसर कर पा रहे तो उन्होंने मेहनत किया है, और आप आंसर अगर नहीं कर पा रहे तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है आपसे। तो वो खुद को ढूंढना है कि आपको टेक्निक पता है, सब पता है, आंसर क्यों नहीं आता। तो मैथमेटिक्स में भी प्रॉब्लम हो सकता है, उसको भी करेक्शन करना होगा आपको। और अपना मैथ्स टीचर को बोलो कि ये सब हमको नहीं आता है, LCM 1/, ये सब आ जाने से बैंड बच जाता है, वो सब समझाना पड़ेगा आप लोगों को, और अपना जो प्रॉब्लम है वो टीचर को बताना पड़ेगा। सो नंबर 4, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नंबर 4 सबको समझ में आ गया। आंसर मैच नहीं हुआ कोई बात नहीं, समझ में तो सबको आ गया क्या करना है। आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर 4 के बाद 5 गायब, बस 6 पे आ गए डायरेक्ट, कोई बात नहीं। Look at this particular question, and this is again important question. Important this one. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पैटर्न अगर आपको समझ में आ गया तो आपको बाकी जो बचे हुए 5 न्यूमेरिकल है वो अपने आप भी हो जाएंगे आपसे। An object is kept in front of a concave mirror of focal length 20 सेंटीमीटर। इस बार फोकल लेंथ बता दिया, कॉन्केव मिरर है तो नेगेटिव में लेंगे। The image is 3 times the size of object. Image is 3 times the size of object, लेकिन ये नहीं बताया रियल है वर्चुअल है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, कॉन्केव मिरर कैन फॉर्म बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेजेस, और यहाँ तो बोला हुआ नहीं है। 3 टाइम्स मैग्नीफाइड है, कॉन्केव मिरर में रियल इमेज भी मैग्नीफाइड होता है, वर्चुअल इमेज भी मैग्नीफाइड होता है, दोनों पॉसिबिलिटीज है। इसीलिए आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया, देखो, 2 पॉसिबल डिस्टेंसेस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। 2 पॉसिबल डिस्टेंस होगा कि नहीं, देखो अगर आप कॉन्केव मिरर का बात करोगे तो 2 पॉसिबल डिस्टेंस हो सकता है, एक रियल इमेज के लिए, एक वर्चुअल इमेज के लिए। ये पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट अगर यहां होगा तो आपको रियल इन्वर्टेड इमेज मिलेगा मैग्नीफाइड, और कॉन्केव मिरर में ऑब्जेक्ट अगर ये पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट अगर फोकस और पोल के बीच में हुआ तो आपको वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज यहां मिलेगा बिहाइंड द मिरर। सो ये कॉन्केव मिरर में पॉसिबल है, 2 पॉसिबिलिटी है कि नहीं। पहला में ऑब्जेक्ट है बिटवीन C एंड F, सेकंड में ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट कहां है, बिटवीन F एंड P। सो हम लोग 2 केस में करेंगे यहाँ, फर्स्ट केस एंड सेकंड केस, और हम लोग 2 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। विल फाइंड आउट 2 ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस। तो फर्स्ट केस और सेकंड केस, फर्स्ट केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, m को -3 ले रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, -3, और f को -20 लेंगे, कॉन्केव मिरर, फोकल एंड नेगेटिव, और m और f से हम लोग को u फाइंड आउट करना है, ये है क्वेश्चन। फिर सेकेंड केस में, सेकेंड केस में हम लोग के पास m इक्वल्स टू 3 लेंगे। 3 क्यों लेंगे, वर्चुअल इमेज के लिए,
आपको चाहो तो आप ब्रैकेट में ये मेंशन कर दो, फॉर रियल इमेज, फॉर वर्चुअल इमेज। एंड फोकल लेंथ क्या लेंगे, -20, एंड वी विल फाइंड आउट u इन दिस केस ऑल्सो। इसीलिए हम लोग को दो पॉसिबल डिस्टेंस मिलेगा ऑब्जेक्ट का। अब बहुत स्टूडेंट सोच रहा होगा ऐसा कोई फॉर्मूला तो डायरेक्ट है नहीं जिससे m और f से u मिल जाए। डायरेक्ट नहीं है, फॉर्मूला बना सकते हो लेकिन जरूरत नहीं है इतना। एक सिंपल टेक्निक में बताता हूं आपको। m इक्वल्स टू -v/u आप जानते हो स्फेरिकल मिरर में, तो आप यहां लिख सकते हो -3 इक्वल्स टू -v/u। -3 इक्वल्स टू -v/u, इससे आपको v इक्वल्स टू 3u एक रिलेशन मिल गया। फिर आप यूज करो स्फेरिकल मिरर फॉर्मूला, 1/u प्लस 1/v इक्वल्स टू 1/f, और इस फॉर्मूला में v के जगह पे आप 3u लिखो। v के जगह पे आपको लिखना है 3u। सो 1/u प्लस 1/3u इक्वल्स टू 1/-20, और इसको सॉल्व करके आपको u मिल जाएगा। और सिमिलर पैटर्न से आप यहाँ पे u निकाल सकते हो, और आपका दो पॉसिबल आंसर्स जो आना चाहिए, बहुतों ने फाइंड आउट किया है। ओके, बहुतों ने फाइंड आउट किया है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव में आना चाहिए। गुड, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव में आना चाहिए। तो फर्स्ट केस मैंने यहाँ डिस्कस किया रियल इन्वर्टेड इमेज के लिए। तो रियल इन्वर्टेड इमेज के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेरे पास जो आंसर है वो है -80/3, जो -26.66 या 67 लिख सकते हो। सो u का आंसर आ रहा है -26.6 या 67 लिख सकते हो आप। देन वर्चुअल इमेज के लिए u का जो आंसर मेरे पास है इट इज -40/3। तो -40/3 13.33 आएगा, -13.33 सेंटीमीटर। I hope you have understood this particular question and its pattern of solution. समझ में आ गया होगा आप लोगों को। And it is one of the most important pattern. आपको ये पैटर्न अगर समझ में आ गया तो अब समझ लो आपसे मैक्सिमम न्यूमेरिकल हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। आपको प्रैक्टिस करना है। आज का क्लास करके अगर आप 1 महीना तक न्यूमेरिकल नहीं करोगे तो सिचुएशन ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट 5 क्वेश्चन जो है उनका मैं आपको सिर्फ हिंट दूंगा, और उस हिंट को यूटिलाइज करके आपको न्यूमेरिकल करना होगा। थोड़ा फास्ट जाएंगे हम लोग, थोड़ा फास्ट जाएंगे। आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, लोकेश को वेट करना होगा थोड़ा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 5 नंबरिंग यहाँ पे, नंबरिंग थोड़ा मिस्टेक है। सो यहाँ पे मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। नंबर 5 आपको सॉल्यूशन खुद करना, मैं आंसर बता दूंगा सिर्फ आपको समझाने के बाद, और उस आंसर तक आपको पहुंचना है। A concave mirror produces 3 times enlarged virtual image। इसमें बता दिया गया enlarged और virtual भी है, तो m का वैल्यू मुझे पता चल गया 3 times enlarged and virtual। तो m equals to 3, -3 नहीं होगा, माइनस होता रियल के लिए। And it is placed at a distance of 10 centimeter in front of it, तो -10। m और u बता दिया गया, और मुझे पूछा गया रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा। तो m और u से हम लोग आराम से v फाइंड आउट कर सकते हैं। m इक्वल्स टू -v/u से v आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास u और v होने के बाद आप आराम से f फाइंड आउट कर सकते हो। 1/u प्लस 1/v इक्वल्स टू 1/f से आपको f पता चल जाएगा, और f पता चलने के बाद r इक्वल्स टू ट्वाइस f से रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा। दिस इज द क्वेश्चन, और हो सकता है किसी ने सॉल्व भी कर दिया है, और यहाँ सॉल्यूशन आ चुका है और करेक्ट भी है। इतना फास्ट है कुछ स्टूडेंट। एंड द आंसर हियर, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आंसर जो है वो है -30 सेंटीमीटर। आप लोग ट्राई कीजिएगा, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है। आपसे नहीं हुआ अभी तक, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहा हूँ।
Just take the screenshot and raise your hand. Just take the screenshot and raise your hand. And I'm moving to the next question. Moving to next question. Number 7. Number 7, another important question. How far should an object be placed from the pole of a converging mirror? Converging mirror यानी concave mirror. Converging mirror यानी कौन सा mirror? It is concave mirror. How far should an object be placed from the pole of a converging mirror of focal length 20 centimeter to form a real image of size exactly 1/4 of the size of the object? Real image जिसका size 1/4 of the size of the object यानी m equals to -4. m equals to -4. m का पता चल गया. फोकल लेंथ गिवन है. फोकल लेंथ कितना? फोकल लेंथ कन्वर्जिंग मिरर कॉन्केव मिरर -20. m और f से आपको फाइंड आउट करना है u. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है इसमें. और ये पैटर्न ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. m और f से u कैसे निकालते हैं? जो क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किया था 2 पॉसिबल पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, वहां यही तो किया था हम लोगों ने. m और f से u. देखता हूं कौन कौन आंसर दे चुके हैं. ओके यहाँ पे आंसर मेरे पास अवेलेबल है, लेकिन आंसर तो मैच नहीं हो रहा जो आंसर आप लोग दे रहे हैं उसके साथ. अदर्स जस्ट ट्राई. फोकल लेंथ 20 है. फोकल लेंथ 20. सिवेश का आंसर करेक्ट लग रहा है मुझे. सिवेश का आंसर करेक्ट लग रहा है. आज क्लास 5-10 मिनट्स और एक्सटेंड होगा अभी. मनीष चौधरी गॉट द आंसर. बाकी लोग को आंसर क्यों नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा मुझे. बहुतों का करेक्ट नहीं है आंसर. मेरे पास जो आंसर उस आंसर के साथ मैच हो रहा है शिवेश का, मनीष का. राजदीप रॉन्ग है. m और f से u निकालने का टेक्निक थोड़ा देर पहले ही डिस्कस किया था हम लोग. पहले m इक्वल्स टू माइनस v बाई यू. m इक्वल्स टू माइनस v बाई यू से v और u का रिलेशन यूज निकालेंगे. v और u का रिलेशन को बाद में 1 बाई यू प्लस 1 बाई v इक्वल्स टू 1 बाई f में यूज करेंगे. प्रियांशी कनोई, आर्ची, वान्या got the correct answer, and the answer here ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का आंसर जो मेरे पास अवेलेबल है -100 सेंटीमीटर. -100 सेंटीमीटर. ओके कंपटीशन में क्या थोड़ा मजा आता है जब देखता है कि हम कर पा रहा, और यहाँ इतना बड़ा बैच में कितना झंडू लोग है जो लोग बैठे हैं घर में आराम से. तो यही तुम्हारा विनिंग सिचुएशन यहीं पे है. आपका स्कूल का क्लास से बड़ा सेक्शन यहाँ पे है, और वहां पे अगर आप एक्सेल कर पा रहे हो तो समझ लो इतना वैरायटी ऑफ स्कूल का स्टूडेंट है. तो आप समझ रहे हो ना. सो दैट इज इंपॉर्टेंट. आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नंबर 8. नंबर 8 आज का क्लास जो है वो है सिंपल न्यूमेरिकल का. इसमें हाई ग्रेड क्वेश्चन भी है. क्वेश्चन पढ़ने के बाद बड़ा बड़ा बाउंसर जाएगा. दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आल्सो देयर. नंबर 8 a concave mirror produces 3 times magnified enlarged real image. इस बार concave mirror m बता दिया. 3 times magnified, 3 times magnified enlarged real image. 3 times magnified और real होने से m equals to -3. and बहुत easy question है ये. Image of an object placed at 10 centimeter in front of it. Object distance बता दिया आपको कितना 10 centimeter. और पूछा इमेज डिस्टेंस पूछा. इससे इजी क्वेश्चन नहीं है. इमेज डिस्टेंस आपको पूछा है नंबर 8 में. इमेज डिस्टेंस एकदम इजी क्वेश्चन. इजी. बस फ्रंट में होगा या बिहाइंड होगा ये भी बता दो. फ्रंट ऑफ द मिरर और बिहाइंड द मिरर. हिमांशु सिंह करेक्ट है. फ्रंट और बिहाइंड. It is in the front. So m equals to minus v by u. एक ही फॉर्मूला से हो जाएगा ये. आपको v फाइंड आउट करना है.
आपको इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके v फाइंड आउट करना एंड द आंसर विथ मी नंबर 8 का जो आंसर मेरे पास है वो v इक्वल्स टू -30 सेंटीमीटर और नेगेटिव आने का मतलब रियल inverted and it is formed in front of the mirror. It is formed in front of the mirror. I am moving to another question. आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो इस पर्टिकुलर हिंट का. I am moving to another question. नंबर 8 टारगेट था 10, 2 और है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है अगर अब तक का क्लास आपको समझ में आ गया तो. नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 में एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दे दिया आपको, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर is placed at a distance of 16 centimeter from a concave mirror. Okay, is placed at a distance of कितना u -16 centimeter and which produces a real image 3 centimeter height. रियल इमेज का हाइट दे दिया, रियल इमेज नेगेटिव में होता है हाइट, सो -3 सेंटीमीटर. रियल इमेज इन्वर्टेड होता है इसलिए हाइट नेगेटिव में लेंगे. इस बार आपको हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ द इमेज बता दिया और u भी बता दिया गया. फिर आपको पूछा जा रहा फोकल लेंथ क्या होगा और पोजीशन ऑफ द इमेज क्या होगा. फोकल लेंथ और पोजीशन ऑफ द इमेज, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, m इक्वल्स टू h' से पहले आप m फाइंड आउट करोगे. ठीक है, m आपको पता चल गया. फिर आप m इक्वल्स टू -v/u से, m इक्वल्स टू -v/u से आपको u ऑलरेडी है तो आपको v पता चल जाएगा. ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर तो पहले आ गया, पोजीशन ऑफ द इमेज, और बाद में आपको 1/u प्लस 1/v इक्वल्स टू 1/f से आपको पता चल जाएगा फोकल लेंथ. काम हो गया. ओके, और यहाँ पे फोकल लेंथ का आंसर कौन दे रहा है, फोकल लेंथ, सिर्फ फोकल लेंथ का आंसर दो मुझे, प्लस में या माइनस में. फोकल लेंथ का आंसर देना है प्लस या माइनस, प्लस माइनस प्रॉपर साइन के साथ. ओके, मेजॉरिटी करेक्ट है लेकिन रॉन्ग भी बहुतों का हुआ है एंड द आंसर इज -9.6 सेंटीमीटर, -9.6 सेंटीमीटर. ओके, नंबर 9 हिंट भी मैंने दे दिया है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू. And now we are going to discuss last question of the day. Last question we are going to discuss. So समझ में आ गया होगा टेक्निक इसका. Moving to the next question and this one again another simple question. An object 5 सेंटीमीटर हाइट, एक ऑब्जेक्ट जिसका हाइट है 5 सेंटीमीटर. ऑब्जेक्ट का हाइट हम लोग पॉजिटिव लेते हैं. It is placed at a distance of 10 centimeter from a convex mirror u 10 centimeter, तो u नेगेटिव में लेना है -10. And convex mirror का radius of curvature पॉजिटिव होता है. It is given here 30 centimeter. आपको फाइंड आउट करना है नेचर पोजीशन एंड साइज. नेचर पोजीशन आपको v से पता चल जाएगा और साइज के लिए आपको पहले m फाइंड आउट करना है एंड बाद में आपको h'. हम लोग ऐसा बहुत न्यूमेरिकल कर चुके हैं ऑलरेडी, तो ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपको खुद को करना है. मैं सिर्फ आपको आंसर्स बताऊंगा. ओके, जस्ट मेनी ऑफ यू आर गिविंग करेक्ट आंसर्स, मेनी ऑफ यू आर गिविंग करेक्ट आंसर. वी का आंसर बहुतों का रॉन्ग भी है लेकिन मेजोरिटी का करेक्ट है. एंड आंसर फॉर वी मैं बता देता हूं यहाँ पे नेचर पोजीशन जानने के लिए. V is 6 सेंटीमीटर, प्लस में आएगा, कॉन्वेक्स मिरर है, इट इज 6 सेंटीमीटर. V का आंसर 6 सेंटीमीटर. जिसका जिसका आ रहा आंसर वो लोग अंदर से एक गुड फीलिंग उनको आना चाहिए कि आंसर आ रहा है. देन मैग्निफिकेशन आपको फाइंड आउट करना था. उसके बाद हाइट ऑफ द इमेज, मैग्निफिकेशन क्वेश्चन में पूछा नहीं है. हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज, इफ आई आस्क यू हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज का आंसर आना चाहिए 3 सेंटीमीटर. हाइट ऑफ द इमेज का आंसर आना चाहिए 3 सेंटीमीटर. ओके, तो क्लास जो आज वाला थोड़ा बाकी क्लासों से डिफरेंट होने का रीजन है स्टूडेंट्स का फीडबैक. बहुत स्टूडेंट को जब मैंने फॉर्म एक दिया है
उसमें आपको एग्जैक्टली बताना होगा कि प्रॉब्लम क्या है आपको। ओके, तो तभी उसका सोल्यूशन होगा। यहाँ हाइट ऑफ द इमेज जो है, द हाइट ऑफ द इमेज यहाँ पे कौन सा कॉन्वेक्स मिरर है, 3 सेंटीमीटर आना चाहिए। हाइट ऑफ द इमेज 3 सेंटीमीटर। ओके, सो ये 10 क्वेश्चन, ये 10 क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व करते हो, ठीक है, सॉल्व करते हो और अपने आप हो जाता है।